Good morning, students. Today we will learn, in our previous lecture we had concept of the unit hydrograph, okay, and how can we construct the unit hydrograph, that also we have learned. The process. Today what we will learn? We will learn the practical application, or rather we can say how we will implement the idea of unit hydrograph, okay? And what are the data that we can obtain with the help of unit hydrograph. Hydrograph means basically hydrograph is used for estimating the maximum discharge in a stream. Whatever the runoff that has been collected from a catchment area, it will contribute to the it will contribute to the stream flow, right? So we have to determine that because of the precipitation or because of the rainfall, what is the maximum discharge value, okay? What is the maximum flow in a particular stream of that catchment area? And with the help of that maximum value also we can estimate that whether it may give rise to flood or not, okay? The flood may occur or not. So also this maximum discharge value is used in your design purpose of the hydraulic structure, okay? So this is the main funda of hydrograph. Now under the hydrograph, one important topic was this unit hydrograph, and with the help of unit hydrograph we can solve several types of the problems, okay, basically related to the flood hydrograph or direct runoff hydrograph. We can estimate with the help of unit hydrograph, okay? So here I will go through the definition, okay? This is just the division of yesterday's lecture only, and we will discuss some assumptions in details, okay? And using this assumption, there is one theory, okay, which has been derived, which is the superimposition theory, and this theory is one kind of method to determine to solve unit hydrograph problems, okay? One method, it is one kind of method. So we will learn this also, and based on it we will see the what are the different cases, what are the different conditions where we can use this superimposition theorem, and we will try to solve some numerical related to superimposition theory, okay? So this is unit hydrograph. Unit hydrograph is nothing but the direct runoff hydrograph. See, this is what, this is actually, this hydrograph will include base flow, okay? So if the hydrograph includes base flow, that means it is the flood hydrograph, okay? But if we deduct the base flow from the flood hydrograph, we will get the direct runoff hydrograph of certain centimeter with certain centimeter of excess rainfall depth, okay? Now we have to convert the direct runoff hydrograph into the unit hydrograph. How? Simply dividing all the ordinates of the direct runoff hydrograph by the rainfall excess, we will get this curve, okay? This is the d-hour unit hydrograph, okay? This is the d-hour flood hydrograph, corresponding is the d-hour unit hydrograph, okay? Here excess rainfall depth was r, or runoff depth was r centimeter, and here it is 1 centimeter. So I think this is clear how we will construct this unit hydrograph. We have done it, okay? Now comes the assumptions. In short question, they may ask you that who has derived these assumptions, okay? Who has derived this unit hydrograph? Then L.K. Sarman is the person, okay? Is the person who has derived this unit hydrograph theory. Now, what are the assumptions? There, as I said, there were two main assumptions and three other assumptions, okay? Basic assumption is what? Time invariance. Our unit hydrograph is time invariance and linear response, okay? Time invariance means if the unit hydrograph shape of the unit hydrograph will remain constant, okay? It will remain constant irrespective of the time, okay? Suppose in the morning one rainfall occur in the same catchment, in the evening another rainfall occur of the same characteristics, then what happens? They will create one with the help of data, we will draw the graph, unit hydrograph. In both the cases the shape will be same, okay? It doesn't depend whether it occurs in the morning, evening or afternoon, but
what happens? It is irrespective of the time. So the shape of unit hydrograph of a catchment for a catchment is always same and does not depend on rainfall occurring time. So this is the first assumption. Second assumption was their linear response. Linear response means what? Certain amount, if r centimeter of rainfall will create q meter cube of runoff, okay, then 3r centimeter of the rainfall will create 3 times of whatever the value which has been created by the r, okay, it will create thrice only. If it is 4r, then it will be 4q. Okay, this also I have discussed yesterday. That means what? More is the rainfall, more is the runoff. Okay, both are directly proportional. And how they are proportional? They are linearly proportional. Okay, that means if 10 centimeter creates 100 cubic of discharge, then 20 centimeter will create 200 cubics of discharge. So in this manner, they are linearly variable, linear in the relationship. Okay, and based on this assumption, only one theorem has been derived, okay, which is the superimposition theory. Okay, we will see that theory. Now, what is the superimposition theory? Okay, we will see, discuss it in the later class, later lecture, in slides. Okay, now other assumption is what? Say for example, there is a catchment, okay, a particular intensity of rainfall occurred in that catchment. Then what is the assumption? Assumption is that the intensity of the rainfall must be same throughout the catchment. Okay, मतलब कि catchment का किसी भी area में your rainfall intensity must be same. Okay, second assumption was what? That is the rainfall depth will be same, or we can say rainfall depth is uniformly distributed. Okay, in a catchment area, every location will get same amount of rainfall. Okay, that is the uniformly distributed. And what is the third assumption? That is what? Rainfall must be started and stopped simultaneously throughout the catchment. इसका मतलब है कि suppose one catchment area is there. Okay, this is your catchment area. Okay, suppose rainfall is occurring in this catchment area. Okay, so in the particular area, suppose here it started from 10 am to 12 till 12 pm. Here also it will start at 10 to 12. Here also it will start from 10 and ends at 12. So it is rainfall is starting and stopping simultaneously. Okay, so this is the third assumption. So these are the assumption. What is that? First is intensity must be same, rainfall depth, or we can say the rainfall is uniformly distributed, and the time of start and stopping of the rainfall is same, okay, throughout the catchment. So now comes this one. See how we are using, this is actually the application of unit hydrograph. Okay, we have unit hydrograph, D our unit hydrograph. Okay, now using this unit hydrograph, how we will develop this complex T hour hydrograph. Okay, how we will develop, we will see. There are basically depending upon the, excuse me, depending upon the type of the storms, characteristics of the storm, whether it is uniform storm or non-uniform storm. Okay, so there are basically two types of the method. See, if the storm is uniform, then we have to use method of superimposition or S-curve method, which is also known as the summation curve method. That means in the question unit hydrograph, something D hour unit hydrograph will be given to you. Okay, say for example in question they have given 2 hour unit hydrograph. Okay, now they will ask you to derive 4 hour hydrograph, flood hydrograph, with the help of this 2 hour unit hydrograph. Okay, then how can we calculate, how can we obtain those values? So basically there are
two types of the condition for uniform, non-uniform. For uniform storm, two methods are there: method of superimposition and S-curve method. Okay, and another is what? Convolution and deconvolution. Mainly these two methods are important for this syllabus. Okay, so we will learn this and this method. With the help of this method, we will try to solve the problems. That means what? We will try to derive T-hour hydrograph from the given D-hour unit hydrograph. Please remember, this is the unit hydrograph and this is the flood hydrograph. Okay, we have to derive flood hydrograph from the unit hydrograph. Okay, and this also we have to remember, this is D hour, given is what? D hour, and what we have to estimate? T hour. Okay, now what is the method of superimposition and where we can use this method? Okay, what are the criteria for using this method? So it is applicable for uniform storm. Okay, and only if it satisfies the following two conditions, then only we can use this superimposition. Otherwise we have to go for another method, other methods. Okay, so what are the conditions? T must be greater than D. That means, suppose in question you have it is given 2-hour unit hydrograph ordinates are given to you. Okay, now they will ask you to derive 4 hours hydrograph, 4-hour flood hydrograph. Okay, whether it may be 4-hour unit hydrograph or 4-hour direct runoff hydrograph or 4-hour flood hydrograph. Okay, so here what is the T? T is 4, D is 2. Okay, so first condition is satisfied. That means what? 4 is greater than 2. This is satisfied. Okay, now we have to go for the second criteria. What is the second criteria? Your T must be equals to ND, where N is integer. No, remember, this is not fraction or not number, any other number. It is the integer. Okay, integer means what? N value will be 1, 2, 3, 4 like that. Okay, so here N must be integer and its value should be 2, 3, 4. Okay, so in the question it is given 2 hours and they have asked you to derive for 4 hours. So can we use this method of superimposition? My question to you, तुमको क्वेश्चन में 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, बोला गया है 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालो या 4 आवर डायरेक्ट डीआरएच मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालो. ठीक है, तो कैसे करोगे? तो पहले बोलो ये मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं इन दैट केस? Will it be applicable? See, this is given suppose 2 hour. Okay, this is given suppose 2 hour unit hydrograph and they have asked you to find 4 hour फ्लड हाइड्रोग्राफ और डीआरएच व्हाटएवर. ओके, डीआरएच या फ्लड हाइड्रोग्राफ कुछ भी बोलेगा, तो बोलो ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन? कैन वी यूज मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन इन दिस केस? देखो पहले t इज ग्रेटर देन d सेटिस्फाई कर रहा है, t इज 4, d इज 2, सो 4 is greater than 2, so this is satisfying. Okay, now let us go to the second criteria. second criteria में क्या बोला था? t equals to क्या है? n by d. तो मतलब ये तुम्हारा 4 is equals to n into 2, right? अब देखो 2 n equals to क्या आ जाएगा? n equals to आएगा 2. Now your n is integer as well as it is number. Okay, 2, 3, 4, 5, 6 like this number. So it is satisfying, right? So these two criteria is satisfied, so we can use this superimposition method. Now I am giving you another example. Okay, say for example this is your 2 hour unit hydrograph given to you. Okay, and they have asked you to determine 5 hours flood hydrograph or DRH. So can we use this method of superimposition in this case? Bolo, am I audible or not? Please respond. Hello.
আছো কি তোমরা? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম আছি। বলো তাহলে এটা কি? হবে না ম্যাম, মানে এটা তো 2 hours দেওয়া আছে তো। Yes. Why? Because see, this is satisfying. 5 hour is greater than 2 hour. It is satisfying. But second case, see, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 5 बिठाओ t के जगह पर, ठीक है? n into d is what? 2. Okay. So n will be what? N will be your 2.5. So ये क्या इंटीजर है? 2.5 नहीं, राइट? सो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, राइट? सो इट इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये सेकेंड केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो वी कैन नॉट यूज मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन इन सच प्रॉब्लम, इन सच केसेस। ओके, ये भी देखना है हमको, तो उसके लिए we will see other case. Okay, maybe it may be S curve or like that. Okay, we have to use other method in that case. Now in this method of superimposition, मतलब कि ये वाला जब सेटिस्फाई होगा, t ग्रेटर देन d है और t इज इक्वल टू n इंटू डी, वेर n इज 2 3 4 वट एवर, ठीक है? अगर ऐसा केस है तो हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे प्रॉब्लम है उसके अंदर में भी दो टाइप का केसेस है। ओके, फर्स्ट केस इज व्हाट? योर d आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी गिवन। अब d आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में ड्यूरेशन कितना है और इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कितना है, बोलो तो? In this d hour unit hydrograph, what is the effective depth of rainfall या runoff and duration of the rainfall? Duration of rainfall कितना है इसका? d hour बोला है, so duration is d only, right? और ये unit hydrograph है, so your effective rainfall will be 1 centimeter only, right? तो देखो effective rainfall depth is 1 centimeter and duration is d hour. Okay, this will be given to you. Now with the help of this we have to find out d hour, see d hour and n centimeter drh. Okay, यहाँ पे क्या है? d hour 1 centimeter यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब है d hour 1 centimeter हाइड्रोग्राफ है, दिस इज व्हाट हमको निकालना क्या है? d hour n centimeter drh. रिमेंबर यहाँ पे दोनों, ये वाला क्या है? कांस्टेंट है। ओके, दोनों इज सेम, मतलब 2 आवर्स है तो ये भी 2 आवर्स है, ये 4 आवर्स है तो हमको बोलेगा 4 आवर्स का ही निकालो। ओके, 6 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ इज गिवन, दे विल आस्क यू टू डिटरमाइन 6 आवर्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसा कुछ भी डीआरएच दे देगा। ओके, उसका डीआरएच निकालो। देन इन दिस केस योर ड्यूरेशन इज डी आवर, देखो दोनों में ड्यूरेशन इज सेम, ओनली द रेनफॉल डेप्थ इज, रन ऑफ डेप्थ इज ओनली वेरी, यहाँ पे यूनिट है तो इसलिए ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ है, एंड इन दिस केस इट इज n सेंटीमीटर, वेयर n इज द इंटीजर, अगेन n इज इंटीजर और इसका वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा ऐसा रहेगा। ओके, अब इसको कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ सुपर इम्पोजिशन थ्योरम। सी, लेट अस प्लॉट आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो दिया है उसको हम प्लॉट करेंगे। दिस इज गिवन टू अस, मतलब कि इसका ऑर्डिनेट्स विल बी गिवन टू अस, मतलब टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का प्लॉट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स लगेगा वो तुमको दिया रहेगा। ओके, सो वी कैन प्लॉट द ग्राफ, ओके, ऑफ दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ, दिस वन। देखो यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे है तुम्हारा हाइड्रोग्राफ के लिए y एक्सिस इज Q एंड दिस एक्सिस इज T। ओके, अब ये वाला क्या है? देखो रेनफॉल कितना है इसका? रेनफॉल इज ऑफ d आवर, ड्यूरेशन एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना है, मतलब क्या है? दिस इज डेप्थ विल बी 1 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है? फॉर दिस केस हम लोग का सपोज ऐसा एक ग्राफ आएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज योर कितना आवर का रेनफॉल है? d आवर्स का रेनफॉल है, और क्या है ये? दिस इज दी 1 सेंटीमीटर का हाइड्रोग्राफ है, मतलब है इट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, सो दिस इज d आवर, मतलब इस चीज का कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट हाइड्रोग्राफ दिस d1, ये वाला है। ओके, क्लियर ये वाला एवरीवन? Is this clear? Hello. Yes, ma'am. Okay. Now see what we have to do. लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर का बोला है, नहीं, हमको n सेंटीमीटर का निकालना है। अब ये n कितना देर तक जाएगा ये हमको दिया रहेगा। ओके, सपोज इसको 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी होता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अब इसका और 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है? देखो इसका और 1 सेंटीमीटर, ड्यूरेशन इज सेम,
ड्यूरेशन इज डी आवर ओनली, ठीक है। और एक बार बारिश हुआ है तुम्हारा ड्यूरेशन, और तुम्हारा सेंटीमीटर कितना है उसका भी 1 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर डी आवर्स के लिए फिर से अगर हम प्लॉट करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ तो सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा, राइट। तो इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, सेम डाटा ही रहेगा, राइट। यूनिट हाइड्रोग्राफ का तो ऑर्डिनेट सेम ही है, तो यहाँ पे ओवरलैप करेगा। सो दिस इज योर नाउ अनदर डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब फिर से और एक डेप्थ को बढ़ा दो, ठीक है। ये रेनफॉल डेप्थ बढ़ रहा है और 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके लिए भी यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या हो जाएगा, डी आवर है 1 सेंटीमीटर, सो ग्राफ विल बी अगेन सेम। हम क्या बोले थे, ग्राफ शेप ऑफ द कर्व विल बी सेम बोले थे ना, तो ये भी सेम है, ठीक है। अब ये हम लोग करते करते जाएंगे, कितना तक जाएंगे, पूरा n सेंटीमीटर तक जाएंगे, ओके। ये वाला पूरा n सेंटीमीटर तक पहुंचना चाहिए, वेदर n इज 5, 2 जो भी है। से फॉर एग्जांपल इन दिस केस योर n इज 3, इस वाले में तुम्हारा n 3 दिया है, तो हमको कितना बार करना है, 3 बार करना है। देखो 1 + 1 + 1 टोटल कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 4 होता तो और एक बार करते, और एक बार ग्राफ होता, प्लॉट करना पड़ता, ओके। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन मतलब देखो ये सब सुपर इम्पोज हो रहा है, इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू, सुपर इम्पोजिशन हमको थ्योरम यूज करना है, उसी हिसाब से क्या करना है, डू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डी आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे 3 ठो तुम्हारा डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया है, तो तीनों का ऑर्डिनेट्स को हम ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ। रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए जो कि ये वाला है, ओके। रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ जो कि ये वाला है, हमको दिया गया ये, अब बोला गया है इतना सारा निकालो, ठीक है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर होता तो इसको हमको 3 बार करना पड़ रहा है, ऐसे 3 बार, ठीक है। तो इसको 3 करने के लिए 3 बार करके अब हम लोग जो भी प्लॉट किया है उसको ऐड कर देंगे, ऑर्डिनेट्स विल बी एडेड, ओके। सो आफ्टर एडिंग व्हाट वी आर गेटिंग दिस इज, देखो इसका डी आवर ही है सबका, देखो डी आवर इंटेंसिटी रेनफॉल ड्यूरेशन इज डी आवर ओनली, ठीक है। लेकिन टोटल रेनफॉल डेप्थ कितना हो रहा है, टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कितना हो रहा है, 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसको ओवरलैप करके, मतलब ये वाला का ऑर्डिनेट प्लस रेड वाला का ऑर्डिनेट प्लस ग्रीन वाला का ऑर्डिनेट ऐड करके अगर हम प्लॉट करेंगे, वी विल गेट दिस कर्व, ओके। एंड दिस कर्व इज द रिजल्टेंट कर्व ऑफ दिस 3। इन 3 का अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो हमको ये वाला रिजल्टेंट कर्व आएगा, ओके। सो दिस इज द फंडा ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ओके। नाउ तो ये क्लियर है ना कैसे करना है हम लोग को। ये वाला केस क्या है, केस इज व्हाट, दोनों का ड्यूरेशन इज सेम, ओके। मतलब ये 2 आवर है तो ये भी 2 आवर के लिए बोला जाएगा। लेकिन क्या किया हम लोग, यूनिट हाइड्रोग्राफ से डीआरएच निकाला है, ओके। डीआरएच मतलब भी है कि क्या, जिसका सेंटीमीटर, जिस डीआरएच का अगर 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ होता है, दैट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके। अब हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ से सर्टेन नंबर ऑफ सेंटीमीटर का n सेंटीमीटर का डीआरएच निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपली वी आर सुपर इम्पोजिंग, ओके। तो ऐसा n तक जाएगा, अगर ये n नंबर बोला गया है तो n तक जाएगा, ओके। तो n तक करके जितना भी होगा सबको ऐड करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आवर एंड n सेंटीमीटर डीआरएच, ओके। नाउ इफ यू नो दिस डीआरएच, हमको मतलब डी आवर n सेंटीमीटर डीआरएच पता है तो तुमको डी आवर n सेंटीमीटर फ्लड हाइड्रोग्राफ भी आ जाएगा। क्या करोगे, सिंपली वी हैव टू ऐड दी, ये वाला कर्व में हमको बेस फ्लो ऐड करके और एक कर्व बना देना है, देन वी विल गेट डी आवर n सेंटीमीटर फ्लड हाइड्रोग्राफ। ये तो कल ही हम लोग किए हैं, ओके। सी तुमको डीआरएस पता है, डीआरएस में बेस फ्लो ऐड कर दो, देन विल गेट फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो इतना स्पेसिफिकेशन डीआरएस में बेस फ्लो ऐड कर देंगे तो वही सेम स्पेसिफिकेशन का फ्लड हाइड्रोग्राफ हमको आ जाएगा, ओके। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल, इस वाले से कैसा एमसीक्यूज आ सकता है, एग्जांपल्स, ठीक है। सी फॉर एग्जांपल, फॉर 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मैक्सिमम क्यू दिया है कितना, 10 मीटर क्यूब। सपोज कोई भी एक ग्राफ पकड़ लो, उसका मैक्सिमम पीक दिया है कितना, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यूजिंग दिस वैल्यू दे हैव आस्क्ड यू टू डिटरमाइन द मैक्सिमम Q value for this one, okay, this DRH. What is 2 hours 4 centimeter DRH? इसका आंसर कितना होगा, कोई बता सकता है?
अगर 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्यू मैक्सिमम क्यू इज 10 मीटर क्यूब, देन 2 आवर 4 सेंटीमीटर DRH का मैक्सिमम क्यू कितना होगा? मैम 40। 40, वेरी गुड। क्योंकि देखो DRH यूएच यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ऑल्सो DRH बट फॉर 1 सेंटीमीटर। ओके, ये भी DRH ही है लेकिन 1 सेंटीमीटर के लिए। तो 4 सेंटीमीटर DRH के लिए क्या होगा? सिंपल हमको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा 40 मीटर क्यूब सेकेंड। सो दिस इज द इक्वेशन। ओके, तुमको पीक DRH पीक यूनिट हाइड्रोग्राफ का देगा, बोलेगा ये यूज करके पीक DRH पीक का मतलब DRH का पीक वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ऐसा तुम लोग का एग्जाम में दे सकता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस रिमेंबर डी दोनों में डी है। अगर 2 घंटा है 2 घंटा या 4 घंटा 4 घंटा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सेंटीमीटर वेरी कर रहा है। ओके, नाउ इन सेकेंड केस क्या हो जाएगा? दिस इज गिवन डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब ER is 1 centimeter, duration is D hour. Okay, this is given. Now using this data, we have to find ND hour and N centimeter DRH. वहां पे क्या था? सिर्फ D hour N centimeter। अब इसमें ND आ रहा है। देखो ये क्या आ जा रहा है? T, कैपिटल T आ जा रहा है। ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला आ जा रहा है। ओके, अब तुमको D दिया है और बोला कैपिटल T निकालो। अगर कैपिटल T is ND, ओके, एंड ऑल्सो N सेंटीमीटर DRH निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे कितना है? effective rainfall depth is n centimeter and duration is ND hours where n is integer जो हम बोले थे पहले 2, 3, 4। so in this case हमको सुपरइम्पोजिशन थ्योरम यूज करना है। कैसे? अब इसमें कैसे करेंगे? तो इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट द यूनिट हाइड्रोग्राफ जो भी दिया है उसको प्लॉट करोगे। ठीक है, तो सपोज दिस इज द D आवर 1 सेंटीमीटर मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ का रेनफॉल का कैरेक्टरिस्टिक है ये, तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोग्राफ इज this unit hydrograph। okay, this is D hour unit hydrograph इस चीज का। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? देखो ND मतलब कि अगर ये 2 घंटे का रेनफॉल डाटा है हमको 4 घंटे का निकालो। N क्या बोले थे हम? इट शुड बी इंटीजर और करने से क्या हो जाएगा? 2 का इंटू 2 करो 4 2 इंटू 6। अगर ये दिस वन विल बी आइदर 4 आइदर 6 आइदर 8। ठीक है, तो तुमको 2 घंटे का दिया है, अब बोला है 4 घंटे का निकालो। तो कैसे करोगे? क्या करोगे? ये रेनफॉल कितना देर तक चलेगा? ये वाला रेनफॉल 2 घंटे के लिए चलेगा, राइट? D आवर के लिए चलेगा। ठीक है, अब इसको अब दूसरा रेनफॉल स्टार्ट होगा कब? ये वाला खत्म होने के बाद दूसरा रेनफॉल स्टार्ट हो रहा है, मतलब आफ्टर D आवर्स, तो लैग्ड बाय D आवर्स। ओके, दूसरा रेनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कर रहे हैं। अब इस चीज का भी हम लोग सिर्फ इसका करस्पॉन्डिंग हम लोग फिर से यही सेट ही रहेगा इसका, क्योंकि दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी DD है, सेम है। ठीक है, तो ये प्लॉट भी सेम रहेगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? इसका स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम आफ्टर D आवर्स। सो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो पहले वाला क्या किया था? एक ही में ओवरलैप हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब ओवरलैप होगा लेकिन थोड़ा लैग बाय D आवर्स इस तरफ से। ठीक है, अब फिर से हम लोग ऐड कर देंगे और थोड़ा, सपोज यहाँ पे ये 2 घंटा का था, अब यहाँ पे बोला 4 घंटा, तो ये 2 बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2 घंटा दिया, यहाँ पे सपोज 6 घंटा के लिए 6 आवर्स के लिए बोला गया, तो यहाँ पे 3 बार ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो वैसे ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो n टाइम्स करने रहना, तो यहाँ पे गए हम लोग और ऐड D आवर्स कर दिया। ठीक है, अगेन दिस इज ये वाला रेनफॉल कब हो रहा है? ये वाला आफ्टर दिस वन, राइट? मतलब आफ्टर दिस एंड दिस विच इज 2 घंटा 4 घंटा के बाद। सो विच इज आफ्टर 2D आवर्स, राइट? ये D आवर है, तो आफ्टर 2D आवर्स दिस इज स्टार्टिंग। तो ये वाला का प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमको n टाइम्स करते जाना है जब तक ना वो पूरा तुमको जितना यहाँ पे बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, अगर ये 2 आवर्स दिया है, यहाँ पे 8 आवर्स का निकालने को बोला, यहाँ पे 4 बार करना है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे 2 आवर्स था, यहाँ पे 6 का करना है, तो 3 बार हम लोगों ने किया है, राइट? बिकॉज n इज 3, क्योंकि 2 ये 6 है तो क्या होगा? 6/2 विल बी n विल बी 3। ओके, तो अब इस सबको हमको सुपर इम्पोज करना है। अगेन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन, मतलब हमको फिर से एड अप कर देना है। अब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो कोऑर्डिनेट है प्लस इसका कोऑर्डिनेट सब ऐड करेंगे तो वी विल गेट वन कर्व। ओके,
नाउ दिस कर्व इज व्हाट, ये सब हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो वो उसको हम लोग DRH बोलते हैं। ओके, सो दिस टोटल विल गिव यू 3D आवर्स, क्योंकि ये देखो 3 आवर्स का डाटा है, और 3 सेंटीमीटर DRH। ओके, क्योंकि ये तीनों का एक टोटल इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, अगर तुम्हारा इसका वैल्यू पता है, इसका ऑर्डिनेट सब पता है, तो बेस को ऐड कर दो, वी विल गेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ 3D आवर्स एंड 3 सेंटीमीटर योर फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, ND आवर n सेंटीमीटर प्लस बेस फ्लो करेंगे तो ND आवर n सेंटीमीटर फ्लड हाइड्रोग्राफ हमको निकल आएगा। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके तो पता चलेगा कि कैसा करना है। ओके, The ordinates of 2-hour unit hydrograph are given below। ये है 2-hour unit hydrograph का ordinates ये है। ओके, फर्स्ट क्या बोला है, derive the ordinates of 4-hour unit hydrograph। ठीक है, तो तुमको यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है। ठीक है, अब बोला गया कि यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, लेकिन कितना का, 4 आवर्स का। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, ऑल्सो वो 4 आवर्स का ऑर्डिनेट्स में जो मैक्सिमम है वो वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग का केस देखो कौन सा केस होगा, ये केस 1 है ना केस 2 है, बोलो। पहले बोलो मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा इसमें। T is what, 4, D is 2, so T is greater than 2 satisfies। okay, again T is what, T is the twice of D, तो हाँ N is equals to 2 है, मतलब कि यहाँ पे 2 is the integer and तुम्हारा वो satisfy कर रहा है, सेकेंड केस भी satisfy कर रहा है। ओके, सो we have used method of superimposition here। अब बोलो ये वाला कौन सा केस है, केस 1 है ना केस 2 है? मैम केस 2। हाँ, केस 1 देखो D आवर से D आवर में हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो केस 2 इज व्हाट, D आवर से ND में निकाल सकते हैं, राइट। तो दिस इज योर केस 2। तो हमको ऐसे प्लॉट करके इसको सम अप कर देना है। ठीक है, इन द प्रीवियस केस हमको कैसे प्लॉट करना था, पूरा ओवरलैप एक ही में हो रहा है, उसको हम लोग सम अप कर दे रहे हैं। ओके, सो इसके लिए हम कैसे करेंगे अब, so these are the given data, 2-hour unit hydrogram जिसमें तुम्हारा ER active rainfall depth is 1 centimeter, duration is 2 hours। ठीक है, now see what they have asked, they have asked to determine the ordinates of unit hydrograph, 4-hour unit hydrograph। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या निकलता था, ND hour and n centimeter DR, we are not getting the unit hydrograph directly। okay, यूनिट हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ हमको नहीं निकल रहा है, हमको क्या निकल रहा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ से DRH निकाल रहे हैं। ओके, पहले तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द DRH, फिर DRH से हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ ले सकते हैं। ओके, तो ये करेंगे, पहले क्या करना है, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सो वी नीड टू फाइंड 4 आवर्स। सो ND है तुम्हारा कितना, N इज 2। ठीक है, सो ND इज 4 आवर्स, ER इज 2 सेंटीमीटर, मतलब N ER इज n सेंटीमीटर, N मतलब है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकालना है, 4 आवर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना, ND इज 4 राइट एंड D इज 2। ND अगर 4 है, D 2 है, तो N का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 आवर N इज 2 सेंटीमीटर। तो हमको पहले क्या निकालना चाहिए, यूजिंग दिस डाटा 4 आवर 2 सेंटीमीटर DRH हमको निकालना है फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन में हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ बोला है, UH बोला है, नॉट DRH। तो पहले DRH निकालते हैं, फिर हम लोग UH निकालेंगे। ओके, तो DRH निकालने के लिए क्या बोले थे हम लोग, DRH के लिए पहले प्लॉट करना है। देखो 2 आवर्स दिया है, ये वाला डाटा ये वाला दिया गया है, 2 आवर्स 1 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ का ये है, इसका करस्पॉन्डिंग दिस इज द 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, कर्व। अब दूसरा क्या करना है हमको, N इज 2, मतलब और एक बार जाना है, ट्वाइस राइट, और एक बार जाएंगे, कितना के बाद स्टार्ट करेगा रेनफॉल, लैग्ड बाय 2 आवर्स। ओके, लैग्ड बाय क्या बोले थे हम, लैग्ड बाय D आवर, तो D यहाँ पे 2 आवर्स है। ओके, अब यहाँ पे और एक रेनफॉल आ जाएगा 2 आवर्स का, सेम इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर का ही है, तो इसका अब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कर्व। ओके, नाउ इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे देन वी विल गेट दिस 4 आवर, ये है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये इसीलिए 2 सेंटीमीटर।
सो दिस कर्व का ऑर्डिनेट्स हमको निकालना है पहले कि इसका वाई एक्सिस कितना है, टाइम तो दिया है, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज, तो इसका डिस्चार्ज का वैल्यू हमको निकालना है. ओके, नाउ वंस यू गेट दिस वैल्यूज, डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ दिस कर्व, okay, this is what 4 centimeter and 4 hour 2 centimeter DRS बोला गया है. ठीक है, तो हमको अगर 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है तो कैसे करेंगे? अगर तुमको ये वाला वैल्यू पता है, यूजिंग दिस वैल्यू हाउ कैन वी कैलकुलेट यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ 4 आवर ड्यूरेशन? कैसे आएगा बोलो? 4 आवर DRS हमको पता है, 4 आवर 2 सेंटीमीटर DRS हमको पता है, कुछ वैल्यू है सपोज. ठीक है, तो अब तुमको बोला है 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालो, तो क्या हो जाएगा? हाउ कैन वी डेवलप? ম্যাম 2 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। Yes, very good. See, we know ND hour unit hydrograph is what? ND hour n centimeter DRH by n. मतलब ये क्या है? ये 2 सेंटीमीटर का DRH for 4 hours ये वाला है, तो obviously UH is what? UH is for 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर, right? In general, this is the formula. N R. Let us go to calculate. This is time versus तुम्हारा ये जो है, ये देखो टाइम वर्सेस डिस्चार्ज दिया गया है. ओके, उसको हम हॉरिजॉन्टली को और परपेंडिकुलरली लिख रहे हैं. तो फर्स्ट क्या कर रहे थे हम लोग? इसका प्लॉट किया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. ओके, मतलब ये जो है ये पहले का ऑर्डिनेट्स आर दिस वन. ओके, अब हमको सेकेंड का ऑर्डिनेट्स चाहिए. तो इसके सेकेंड का ऑर्डिनेट्स क्या करेंगे? वी हैव टू लैग, यही तो सेम ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट सेम है, लेकिन इसका लैग हो गया, रेड वाला का लैग हो गया कितना? बाय 2 आवर्स. ठीक है, तो अब बोलो ये वाला जो 0 रहेगा वो कहां से स्टार्ट होगा? कौन सा टाइम से स्टार्ट होना चाहिए? फर्स्ट वैल्यू 0 वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाएगा? It should be lagged by 2 hours, right? This is the start of the rainfall. फिर 1 घंटा का बाद ये है, 2 घंटा का बाद ये है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डिनेट, मतलब ये है तुम्हारा फर्स्ट ब्लू कलर का कर्व का ऑर्डिनेट्स, राइट? अब हमको रेड कलर का कर्व का ऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करना है, तो वो कहां से स्टार्ट करेंगे? हम कौन सा टाइम से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे. तो यही ऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर देना हमको. दिस ऑर्डिनेट विल बी फिक्स्ड, यही ऑर्डिनेट वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन इट शुड बी शिफ्टेड, राइट? कितना शिफ्ट किया? देखो कितना शिफ्ट किया. इट इज लैग्ड बाय टाइम एक्सिस से शिफ्ट किया हमने, राइट? सो टाइम एक्सिस में हम लोगों ने शिफ्ट किया बाय 2 आवर्स. तो अब ये वाला डाटा हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दिस रो, फ्रॉम 2 आवर रो से. ठीक है, तो देखो यहाँ पे डैश कर दे, यहाँ पे डैश कर दे, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज लैग्ड बाय 2 आवर्स. तो अब यही सेम ऑर्डिनेट्स को हमको शिफ्ट कर देना है, राइट? कहाँ पे शिफ्ट करना है? टाइम के हिसाब में शिफ्ट करना है, टाइम्स के एक्सिस में शिफ्ट करना है. तो कितना शिफ्ट करना है? बाय 2 आवर्स. तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. इज इट क्लियर? ये फंडा क्लियर है ना? Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी क्या है? देखो ये 2 घंटे का, ये 2 घंटे का, हमको 4 आवर्स का चाहिए. तो और करना है? नहीं करना है, सिर्फ 2 बार ही करना है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सुपर इम्पोज, मतलब अब इसका ऑर्डिनेट इसका ऑर्डिनेट ऐड कर देना है, राइट? सो मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन अप्लाई किया, मतलब 0 प्लस नथिंग इज 0, 20 प्लस नथिंग 20, 60 प्लस 0 60, ऐड कर दिया. देखो पूरा ऐड कर दिया. ओके, now this is what? This is your 4 hours 2 centimeter DRH ordinate. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट, मतलब 4 आवर 1 सेंटीमीटर का DRH का ऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला गया है. ओके, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट दी 4 आवर 1 सेंटीमीटर DRH. तो ये 4 आवर 2 सेंटीमीटर DRH का ये ऑर्डिनेट्स है. तो 4 आवर 1 सेंटीमीटर DRH का क्या ऑर्डिनेट्स होगा? इसका क्या होगा? ये 20 का कितना होगा? यहाँ पे बोलो तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे
यहाँ पे तो 0 ही होगा। मैम 40 40 ना 20 20 it is given. This is for 2 सेंटीमीटर, ये है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो ना, तो हाँ, डिवाइडेड बाय 2 माने 10। यस, 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, वही 2 सेंटीमीटर का 20 है तो 1 सेंटीमीटर का 10 है, 2 सेंटीमीटर का 60 है तो 1 सेंटीमीटर का 30 होगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपली डिवाइडेड बाय द दिस कितना भी है नंबर n वैल्यू, ठीक है। तो just simply divide all the coordinates by the 2. Okay, now this ordinate is your unit hydrograph, 4-hour unit hydrograph. Clear? Clear है ये वाला प्रोसीड्यूर? Yes, ma'am. ओके, अब तुमको और सेकेंड पोर्शन में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द मैक्सिमम, राइट। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर कितना है, यहाँ पे देखकर बोलो हमको, फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज वैल्यू, कितना क्यूमेक्स होगा, क्यूमेक्स मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, कितना कितना होना चाहिए, 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा। ये सब क्या है, ऑल दिस आर द ऑर्डिनेट्स, मतलब क्या है, ऑल दिस आर द डिस्चार्ज ओनली, राइट। ये हम कहाँ से लिए, ये डिस्चार्ज का ही वैल्यू है। दिस इज व्हाट हाइड्रोग्राफ क्या है, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का प्लॉट है। टाइम इज इन एक्स एक्सिस, वाई इज इन डिस्चार्ज वैल्यू इज इन वाई एक्सिस। तो ये भी डिस्चार्ज है, ये भी डिस्चार्ज है, ये भी डिस्चार्ज है, राइट। सो इफ दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज वैल्यू फॉर 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो कितना होगा, Ma'am, 110. 4-hour unit hydrograph, this is 110 is what 4-hour 2 सेंटीमीटर DRH का मैक्सिमम डिस्चार्ज है। ओके, हम पूछ रहे 4-hour 1 सेंटीमीटर DRH, मतलब 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब है 1 सेंटीमीटर DRH। ओके, सो 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का मैक्सिमम, 55. yes 55। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन आंसर। So this is the maximum discharge of 4-hour unit hydrograph. Clear? Concept clear है ना? Yes, ma'am. देखिए टाइम कत আছে আরো আছে, ঠিক আছে। Now we will solve second, okay, second problem। ये क्या है, अब ये तुम लोग ही करो। See, convert 1-hour unit, please mute, एक तो mute करो। Thank you. So convert 1-hour unit to hour unit। ম্যাম শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে এখন, হ্যাঁ ম্যাম। ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে, অডিবল? See, Yes, ma'am. convert, okay, see convert 1-hour unit hydrograph to 3 hours unit hydrograph। पीछे पिछले वाले में भी क्या था, 2-hour unit hydrograph to 4-hour unit hydrograph था, राइट। लेकिन हमको पहले क्या करना चाहिए था, फर्स्ट वी हैव टू डिराइव दिस वन, मतलब कि 2 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ से पहले 4 hours जितना भी n नंबर ऑफ सेंटीमीटर का DRH होगा वो चाहिए, मतलब पहले DRH करना है, फिर वी कैन गो टू यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पे भी हमको डायरेक्ट नहीं करना है, तो फर्स्ट में हमको DRH निकालना है, फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। ओके, मतलब सुपर इम्पोजिशन मेथड अप्लाई करना है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय द जितना भी सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल आ रहा है वो से डिवाइड कर देना। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द कैचमेंट एरिया यूजिंग दिस फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अभी सेम ये वाला सेम प्रोसीड्योर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है देखो, डी दिया है, डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, डी इज 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब ईआर इज 1 सेंटीमीटर। ओके, और चाहिए क्या हमको, 3 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। तो पहले हमको क्या चाहिए, 3 hours 3 सेंटीमीटर वो करना है। ओके, सो एन डी इज व्हाट, एन डी इज यहाँ पे 3 है, सो एन डी 3 है, डी 1 है, तो एन विल बी 3। ओके, मतलब ये क्या है, 3 into 1 will give you 3 hours, right? T is 3, so T equals to ND है तुम्हारा, तो D 1 है, T capital T 3 है, so N will be 3, so duration is 3 hours and ER is N equals to कितना है 3, so 3 सेंटीमीटर होगा।
So first we have to determine the ordinates of 3 hours 3 centimeter DRH using this. Okay, जो दिया गया है 1 hour, ये जो दिया गया है दिस इज टाइम वर्सेस डिस्चार्ज. डिस्चार्ज किस चीज का? 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स का वैल्यू है. ओके, तो करना क्या है? सेम 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया गया है तो इसका प्लॉट करेंगे. देन वी विल गेट 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का प्लॉट, राइट. फिर क्या करना है? लैग्ड बाय 1 आवर करना है. ठीक है, अब कोई बोलो हमको ये लैग्ड बाय कितना बार करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स? पिछले बार में तो 2 बार किए थे. व्हाई? बिकॉज n वाज 2, मतलब 2 hours plus 2 hours is giving us 4 hours. अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा? D is 1 और हमको चाहिए 3. T is 3. तो कितना बार करना पड़ेगा एडिशन? How many times we have to shift this curve? कितना बार शिफ्ट करना पड़ेगा in this case? बोलो কত বার করতে হবে? এখানে 1 ঘন্টা আছে, यहाँ पे 1 घंटा है, 3 आवर बोला है, तो हम लोग वहां पे 2 घंटा था, 4 आवर का निकालने के लिए बोला गया है. ठीक है, सो 2 + 2 मतलब करके 4 आवर्स आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स करना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 आवर और 3 आवर्स है, तो 1 आवर करके कितना बार 3 आवर्स होगा? 3 बार. 3 बार. तो यहाँ पे भी हमको 3 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके, तो एक बार तो ये हो गया, सॉरी एक बार ये हो गया. ठीक है, अब दूसरा लैग करेंगे. फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया और एक 1 आवर का. ठीक है, ड्रॉ किया. अब ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग DRH कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ से. सी लैग्ड बाय 1 आवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका ग्राफ भी यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, नाउ अगेन वी हैव टू लैग ओके बाय फर्दर 1 आवर. सो फ्रॉम द स्टार्ट कितना है? फ्रॉम द स्टार्ट इट इज 2 आवर्स. ओके, बट इन मिडल इट इज 1 आवर, राइट. तो 1 आवर प्लस 1 आवर इज 2 आवर्स, टोटल 2 आवर्स है. तो करके फिर से और एक रेनफॉल डाटा हम लोग यहाँ पे देंगे. अब ये वाला का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से. ये ग्रीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, तो इसका ग्रीन वाला कर्व भी यहाँ से होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? अप्लाई मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन. करने के बाद जो ग्राफ आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका क्या नाम है? द ग्राफ दैट वी विल गेट आफ्टर सुपर इम्पोजिशन, उसको अगर हम ND आवर n सेंटीमीटर DRH बोलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो भी एक ग्राफ आएगा तो ऐसा करके एक ग्राफ आएगा तो इसका नाम क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेम? ये इसको हम कैसे डिनोट कर सकेंगे? पहले बोलो ये कितना आवर्स का है? कितना आवर्स का ड्यूरेशन का ये ग्राफ है, ये बड़ा वाला? 3 hours. 3 आवर्स है, राइट. तो 3 आवर्स एंड कितना सेंटीमीटर का होगा ये वाला इफेक्टिव रेनफॉल? 1 + 1 + 1. ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना का है फिर? 3 सेंटीमीटर का, राइट. सो दिस इज 3 आवर्स एंड 3 सेंटीमीटर DRH. ओके, ये इसका जो भी ग्राफ होगा दैट इज 3 आवर्स एंड 3 सेंटीमीटर DRH. ओके, तो ये वाला आ रहा है. ठीक है, तो हमको पहले ये वाला निकालना है. ओके, तो ये निकालने के बाद व्हाट वी विल डू? वी विल सिंपली व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, दे हैव आस्क्ड यू टू डिराइव 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. लेकिन हमारा आया कितना? 3 आवर 3 सेंटीमीटर DRH. तो हमको बोला गया क्या निकालना? 3 आवर 1 सेंटीमीटर DRH, which is nothing but the 3 hour unit hydrograph. Okay, so 3 hour unit hydrograph मतलब 3 hour 1 centimeter DRH is ये 3 hour 3 centimeter DRH by 3, राइट. 1 सेंटीमीटर का कितना होगा वही करना है. सिंपल, वो जो पहले किया था. अब बोलो हमको कहाँ कितना कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? दिस इज द फर्स्ट, ये जो ब्लू कलर का जो है उसका ऑर्डिनेट्स इज दिस वन. ओके, अब नेक्स्ट ऑर्डिनेट्स कहाँ से स्टार्ट होगा? सेकेंड टर्म यूनिट 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स कहाँ से स्टार्ट होगा? आफ्टर विच रो? After 1. मतलब यहाँ से, राइट. यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट. देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको शिफ्ट कर दिया, राइट. ये वाला हो गया कितना? 1 घंटा 1 घंटा, टोटल 2 घंटा हुआ अभी तक. ओके, हमको 3 घंटा चाहिए तो और 1 घंटा यहाँ पे ऐड करना है. तो और 1 घंटा कहाँ से स्टार्ट होगा? अब फर्दर बाय 1 आवर.
मतलब पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ और लैग्ड बाय 1 आवर, मतलब स्टार्टिंग से और टोटल कितना है, स्टार्टिंग से 2 आवर्स, राइट। 2 आवर्स लैग करके हम प्लॉट करेंगे। तो देखो यहाँ से करके अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई मेथड योर सुपर इम्पोजिशन थ्योरम। तो सुपर इम्पोजिशन थ्योरम मतलब सिंपली एडिशन, ठीक है। 0 2 6 + 2 8 ऐड कर दिया, ठीक है। Now this is your 3 hour 3 centimeter DRH। अब तुमको पूछा गया है फाइंड आउट 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब 3 hour 1 centimeter DRH निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, फर्स्ट का क्या होगा, ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 3 hour, सपोज दिस इज फॉर 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ कॉलम, तो फर्स्ट का क्या होगा 0 ही होगा जो भी है। ये सेकंड का क्या हो जाएगा वैल्यू, what will be the ordinate for this second row, बोलो, करना क्या है आपको, हम डिवाइडेड बाय 3 करते होंगे। 2 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3, राइट। सिंपल करके देखो ये सब आ रहा है, ओके। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 देखो इतना आएगा, ये करने से ये आ रहा है, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 3 4, ठीक है। सो दिस इज द मेथड कि कैसे करना है, कैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है फ्रॉम 1 आवर या कोई भी आवर डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ टू कैपिटल टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। लेकिन वी हैव टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, वो n का वैल्यू इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है, ये सब देखना है, ओके। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था, इन दिस सेम प्रॉब्लम दे हैव आस्क्ड यू टू डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को जो दिया गया है वो वाला ही डाटा यूज करेंगे, ये वाला डाटा यूज करके कैचमेंट एरिया निकालेंगे, ओके। किसी को आइडिया है कि कैचमेंट एरिया कैसे निकालता है, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कैचमेंट एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। ये वाला डाटा दिया गया है। नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। वी नो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज द एरिया अंडर डीआरएच, मतलब कि इसके अंदर में जो भी एरिया है दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, ओके। एंड विद इन दिस व्हाटएवर इज द एरिया दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज द एरिया अंडर द DRH, एंड द एरिया अंडर DRH इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द विच मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड, ओके। ट्रेपेजॉइडल मेथड क्या है, डेल्टा टी मतलब ड्यूरेशन, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, दैट इज 1 आवर है ईच इंटरवल, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डिनेट सेकंड ऑर्डिनेट बाय 2 एंड एडिशन ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट। तो करो, तो 1 आवर इसको सेकंड में कर देना क्योंकि ऑर्डिनेट्स आर इन मीटर क्यूब पर सेकंड। तो 0 0 है, देखो फर्स्ट लास्ट इज 0 एंड अदर को ऐड कर दिया, ओके। करने के बाद वी आर गेटिंग वॉल्यूम एज this much meter cube, because this is in meter cube per second, this is in second, so meter cube, okay. Now you know the volume, okay, and we know what is the depth of the rainfall। ये क्या है, ये वाला ऑर्डिनेट किस चीज का ऑर्डिनेट है, इट इज ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रन ऑफ कितना होगा, इफेक्टिव रन ऑफ का यूनिट हाइड्रोग्राफ में डेप्थ कितना होगा, इन एनी यूनिट हाइड्रोग्राफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ER, ER मतलब डेप्थ ऑफ रन ऑफ कितना है, 1 centimeter, right? So depth of runoff produced from unit hydrograph is 1 centimeter, which is 0.01 meter. Now you know the volume, you know the depth, so we can easily calculate the catchment area using this formula. So we know depth of runoff is volume by catchment area. So catchment area is volume by depth. So volume इतना है, depth इतना है करके, so we are getting this much kilometer square is the catchment area. Okay. So in this way you have to solve the problem. ठीक है, অনেক लेट हो गया, सॉरी। तो I think this is clear, and please go through all the problems, okay, whatever that I have provided in the PPT. If you still have any doubt, then please be free to ask me, okay? Okay, then wait. ठीक है।